Hello, my name is Mohit Sharma. I welcome you to this wonderful platform of Prism Academy. As we are continuing with our first lecture of our literature, language and literature series, that is the letter to a letter to God. This is the second part, and we are continuing with attempting some questions, oral comprehension question. These are oral questions which may not come in your exam, but still we will attempt all these questions in our lecture. So we are continuing with the oral comprehension check. Okay, before beginning this, I would like to recap all the things that we had completed in our previous lecture. Okay, so as we know in the lecture, the main character is Lancho, जिसकी क्रॉप क्या हो जाती है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टोन्स. इसके बाद उसका रिएक्शन क्या होता है कि जो क्रॉप्स हैं, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. उसने क्या स्टेटमेंट दिए जैसे ही उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय होती है कि द प्लैग ऑफ लोकस्ट लेफ्ट मोर देन दिस. स्टेटमेंट क्या था, उसने कंपेयर किया किसको, कि प्लैग ऑफ लोकस्ट लेफ्ट मोर देन दिस. इसके बाद वी हैव दिस हियर हैज लेफ्ट नथिंग एंड दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. उसका रिएक्शन था the night was a sorrowful one, all our work for nothing, and there is no one who can help us, we will go hungry this year. ये उसका रिएक्शन था after as his crops were destroyed. Now let's oral comprehension check. First question is, what did Lancho hope for? Lancho क्या होप कर रहा था, as we had read in the beginning of the chapter कि Lancho, just write answer of this question. Lancho hope for good harvest. Lancho hope for good harvest after some downpour. As I have already taught you that downpour means slight rain. Okay, Lancho hope for good harvest after some downpour. This is the answer of this question. In the same way, the second question is, why did Lancho say the raindrops were like new coins? जैसी बारिश स्टार्ट होती है, ठीक है, उसके बाद Lancho का स्टेटमेंट होता है कि the raindrops were like new coins. Let's attempt this question also. So you can write this answer. Lancho said, quotation always should be in a double inverted comma. Lancho said the raindrops were like new coins because after rain he will get a good harvest. So this is the answer. Let's attempt the next question. How did the rain change what happened to Lancho's field? जैसे ही रेन स्टार्ट होती है, the big drops were 10 centimeter and the small drops were like 5 centimeter. सो इसका आंसर होगा रेन कैसे चेंज होती है,
rain change from the water droplets to hailstones. Okay, तो इसका सिंपल आंसर होगा this second question, sorry, this is second question. ये वाला क्वेश्चन कई बार सीबीएसई बोर्ड्स में आया है और ये इंपॉर्टेंट है, यू कैन मार्क इट एज स्टार. ओके, कई बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. नाउ आंसर थर्ड. Answer third. The question was, how did rain change? What had happened to Lanchos field? The answer of this question. So, rain changed into hailstones from raindrops. We can write it with raindrops, not from raindrops. Okay, we can write with raindrops. Because पानी के साथ ओले आते हैं. Okay, hailstones fall with the raindrops. Hailstones with raindrops. The crops were completely destroyed. You can write this answer as. Okay, next question. What were Lanchos feeling when the hail stopped? Lanchos की feeling क्या थी when the hail stopped? So, the answer of this question. Answer number 4. First, he compared the feeling of the Lancho as the rain stopped or you can write first he compared this ruined crops. He compared ruined crops with flag of locust. Okay, flag of locust, and said flag of locust had left more than this. Second, you can write his statement was you can write this statement like the hail has left nothing. This year we will have no corn and all the work and this one. You can write this complete underlined text in the fourth answer. Remaining text of the fourth answer is this one. The hail has left nothing, all our work for nothing, and there is no one who can help us, and we will go hungry this year.
So we have attempted all these questions. Now let's move ahead. So next, but in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. नाउ वो जो घर था वैली में, वैली के सिर्फ एक ही घर दिख रहा था वहां पे जो कि लेंचो का था, तो उसको बोला गया है सॉलिटरी हाउस. सॉलिटरी मीन्स अलोन. ठीक है, सॉलिटरी मीन्स एकांत, यू कैन से इन हिंदी. ओके, तो वहां पर एक ही घर दिख रहा था उस वैली में, जो कि किसका घर था? लेंचो का. देयर वॉज सिंगल होप फ्रॉम द गॉड, और उनको सिर्फ एक ही एक ही व्यक्ति है जिनसे होप था. ठीक है, वो है गॉड. ठीक है, अब ऑब्वियसली जब हम परेशानी में आते हैं या हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हम वी हैव अ होप फ्रॉम गॉड. तो सेम वे उनको भी किससे होप था? देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. सो डोंट बी सो अपसेट. दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ लेंचो. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. यस, ये दिख रहा था कि ये कंप्लीटली लॉस है. किसका? क्रॉप्स का. क्रॉप्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, उन्हें मालूम था. लेकिन हमेशा याद रखना है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है. उसका स्टेटमेंट था कि रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. और जैसा कि बोलते हैं सभी लोग कि नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. और पूरी रात जिस दिन हेल स्टोन्स ड्रॉप हुए फ्रॉम द स्काई और उसकी क्रॉप्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, उस रात इसको कंप्लीटली होप किससे था? गॉड से. द लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed seen everything, even what is deep in one's conscience. Here one again conscience, it is already given in your textbook, an inner sense of right and wrong, an inner sense of right and wrong. Now as we know that in our nature is confined by the God. Everything is happened with some vital force, और वो vital force कोई एनर्जी है जिसको हम कंसीडर करते हैं सुप्रीम एनर्जी. वो सभी वाइटल फोर्स लगाती है जिससे कुछ ना कुछ फिनोमिना होता है और कुछ एक्शंस और प्रोसेसेस जनरेट होते हैं. तो उसको होप किससे था? गॉड से. उसको यही भरोसा था कि जो भी चीजें होती हैं वो किसके अंडर में होती हैं, किसके नेचर में होती हैं, और नेचर किसके कन्फाइंड है, किसके अधीन आता है? गॉड के. उसको ऐसा होप था. तो वो पूरी रात किसके बारे में सोचता रहा? कि द हेल्प ऑफ गॉड. इसको मालूम था कि उनकी नजर सभी पर है, वो हर चीज को इंस्ट्रक्ट करते हैं. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. यार लेंचो को थोड़ा ऑक्स से कन्वर्ट कर दिया गया, ऑक्स से कंपेयर किया गया है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, जो कि रात दिन काम करता था अपने खेत में, लेकिन स्टिल उसे पढ़ना लिखना आता था. ठीक है, उसको यहां बताया गया है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन लाइक अ, वो एक तरीके से बैल की तरह काम करता था. जैसे बैल खेतों में काम करता है, उसी की तरह लेंचो भी अपने खेतों में काम करता था, बट स्टिल उसे पढ़ना लिखना आता था. इसके बाद द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. Finally, जो मेन क्लाइमेक्स है चैप्टर का, ठीक है, वो आ चुका है कि वो किसको लेटर लिखता है? गॉड को. संडे के दिन जैसे ही शाम होती है, ठीक है, वो क्या करता है? लेटर लिखना शुरू कर देता है.
ठीक है, किसको? लेटर टू गॉड। गॉड ही रॉट, उसने क्या लिखा? इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा अगर आप हेल्प नहीं करते हैं तो मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा, भूखा मर जाएगा। देन आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm। उसके बाद उसने कुछ नहीं लिखा। उसने बोला कि मुझे 100 pesos की जरूरत है और क्योंकि मुझे अपने फील्ड को फिर से उसमें बीज को शो करना है, सीड्स को शो करना है एंड फिर से मुझे उस क्रॉप्स को पूरा प्रिपेयर करना है, क्रॉप्स को प्रिपेयर करना है, तो मुझे 100 pesos की जरूरत है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled। Here meaning troubled means थोड़ा परेशानी में था। उसने लेटर तो लिख दिया, एनवेलप में लेटर लिख दिया, एनवेलप के ऊपर लिख दिया टू गॉड, लेटर टू गॉड, ठीक है। उसने एनवेलप पे लिख दिया टू द गॉड, किसको भेजना है? फ्रॉम लैंचो टू गॉड। और थोड़ा वो परेशानी में था। ट्रबल्ड मींस ही वॉज इन, हिंदी में कह सकते हैं हम लोग परेशानी। इट इज अ पास्ट पार्टिसिपल of trouble, it is a past participle of trouble। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box। पोस्ट ऑफिस गया, वहां पे स्टैंप लगवाया और मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। One of the employees who was postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। उसी पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था और उसकी भी कभी पोस्ट ऑफिस में मदद की गई थी, वो जाता है अपने बॉस के पास हंसता हुआ, काफी ज्यादा जोर से हंसता हुआ, हार्टली लाफिंग, हियर लाफिंग हार्टली, काफी गहराई से हंसता हुआ। कहाँ जाता है? वो अपने बॉस के पास जाता है, उनको लेटर बताता है, लेटर टू गॉड, ऊपर लिखा हुआ था टू द गॉड, लेटर टू द गॉड। नेवर टू इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और उसके पूरे करियर में उसने अभी तक ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर द फैट एमिएबल, फैट यहाँ पर हल्के से मोटा, फैटी मतलब हल्का सा मोटा व्यक्ति, एमिएबल जो कि फ्रेंडली और प्लीजेंट हो, जिसका नेचर कैसा हो? फ्रेंडली और प्लीजेंट। नेक्स्ट, फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा उस लेटर को देख के। एंड बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, उसने लेटर पर देखा, लेटर टू गॉड, वो भी हंसने लगा। एंड बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश I had the faith of a man who wrote this letter, starting a correspondence with God। हाँ, उसने हंसने के बाद तुरंत ही सीरियस हो जाता है और लेटर को ऐसे टेबल पर रखता है, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, ठीक है। कमेंटेड व्हाट फेथ, उसने बोलता है उसको ऐसे हाथ से बताते हुए, लेटर को टैप करते हुए फिंगर से बताता है कि व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है ना। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रॉट दिस लेटर, वो सिर्फ ऐसा विश्वास था कि भगवान से उसकी कहीं ना कहीं उसके संबंध है। करस्पॉन्डेंस मतलब यहाँ वर्ड है करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस विद द गॉड। करस्पॉन्डेंस मीन्स किसी निजी रिलेशन, ठीक है, पर्सनल रिलेशंस we can say in the context of this chapter। correspondence means he knows something more about God, ठीक है, उनके बारे में जानकारी है, उनका पता है उनके बारे में, उनके बारे में काफी ज्यादा उनसे लगाव है। correspondence उनके साथ काफी ज्यादा लगाव है, पर्सनल रिलेशन we can consider it correspondence with God। so in order not to shake the writer's faith in God, तो उनका उसका विश्वास ना तोड़ने के लिए जिसने लेटर भेजा है, जो बॉस रहता है
द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर एक आइडिया देता है अपने बॉस को, क्या, with an idea answer the letter, but when he opened it, it was evident the answer he needed something more than goodwill, ink and paper. जैसे ही वो लेटर को खोलता है और if he needed something more than, वो कुछ ज्यादा चाह रहा था, ठीक है, जो कि उसकी भलाई के लिए ही था, गुडविल के लिए, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, और वो अपने किस पे स्टक था, अपने जो रेजोल्यूशन, उसने जो दृढ़ निश्चित संकल्प लिया था उस पर वो दृढ़ विश्वास था उसे। ही आस्क्ड फॉर, या रेजोल्यूशन मींस दृढ़ संकल्प किसी चीज का, ठीक है, वी कैन से डिटर्मिनेशन, ठीक है, वी हैव डिटर्मिनेशन, we can make a resolution for success, okay, we can make sentence like resolution for success, किसी चीज का संकल्प बना लेना, ठीक है, जिस चीज के डिटरमाइन हो जाना, ठीक है। रेजोल्यूशन, he asked for money from his employees, he himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। वहां पर सभी जितने भी एम्प्लॉयज थे, ठीक है, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉस, सभी ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, जो भी उसके रिलेटिव थे, ठीक है, किसके, पोस्टमास्टर के रिलेटिव, ठीक है, उन्होंने भी इस चीज में पार्टिसिपेट किया, इन द एक्ट ऑफ चैरिटी। यहां पर एक्ट ऑफ चैरिटी क्या होता है, हियर चैरिटी इज अ कलेक्टिव एफर्ट्स टू हेल्प समवन, चैरिटी मीन्स कलेक्टिव एफर्ट्स to help someone। यहां पर फंड्स भी रेज करते हैं हम लोग, ठीक है, और एज अ हम अपने तरफ से कुछ हेल्प कर सकते हैं फिजिकली, ठीक है, वो भी एक चैरिटी का वर्क होता है। फॉर एन एक्ट एज अ वॉलंटियर काम कर सकते हैं हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो भी एक क्या है, काम है चैरिटी का। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. He was able to send the farmers only a little more than half. तो उसके लिए पॉसिबल नहीं था उन सभी के लिए कि 100 पैसों इकट्ठे हो जाएं, लेकिन स्टिल आधे से ज्यादा पैसा उन्होंने कलेक्ट कर लिया था। Then he put the money in an envelope addressed to Lancho. उसी एनवेलप में वो लोग पैसा इकट्ठा करके वो कहां पर सेंड कर देते हैं, to the address to Lancho, with it a letter containing only a single word, signature of God। और उस पर सिग्नेचर था गॉड का, किसका सिग्नेचर था बेटा, स्मॉल सिग्नेचर ऑफ गॉड। और वो कहा, उस लेटर को, उस एनवेलप को भेज देते हैं इसके पास, लैंचो के पास। आफ्टर दैट वी हैव सम ओरल कंप्रेंशन चेक, ठीक है, लेट्स अटेम्प्ट ओरली दिस क्वेश्चन। who or what did Lancho have faith in, what did he do? Obviously he had a faith in God, and what he did, he wrote a letter to God। Next, who read the letter, किसने read किया, the letter was read by postmaster। what did the postmaster do then, इसके बाद postmaster ने क्या किया, postmaster took the letter to his boss and they collectively help him with other employees, okay। after that the following Sunday Lancho came a bit earlier, ठीक है, the following Sunday Lancho came a bit earlier, next Sunday था, next Sunday को वो क्या करता है, थोड़ा जल्दी आ जाता है पोस्ट ऑफिस में। then usual to ask if there was a letter for him, और वो पूछता है आके क्या कोई लेटर है उसके लिए। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on from his office। Contentment means here given is satisfaction, contentment means satisfaction। जैसे ही नेक्स्ट संडे को लैंचो पोस्ट ऑफिस में आता है और पूछता है कि मेरे लिए कोई लेटर आया है, ठीक है, किसी कॉरेस्पॉन्डेंस से मुझे कोई लेटर आया है,
तो पोस्ट मास्टर खुद जाके एक लेटर उनको देता है और बहुत ज्यादा कंटेनमेंट फील करता है आफ्टर द एक्ट ऑफ चैरिटी. लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी. और लैंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था वो कि यस ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसे डीप फेथ था ऑन गॉड की गॉड एग्जिस्ट करते हैं, गॉड मुझे मनी जरूर सेंड करेंगे. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. उसका कॉन्फिडेंस कैसा था? काफी ज्यादा फेथफुल था ऑन द गॉड. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. और जैसे वो पैसों को काउंट करता है वो काफी ज्यादा एंग्री हो जाता है, काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. और उसको इतना ज्यादा फेथ था भगवान पर कि जैसे वो पैसों को काउंट करता है, पैसों को काउंट करने के बाद पता चलता है कि वहां पर 100 पैसों की जगह 70 पैसों हैं, 30 पैसों कम है. और उसे इतना विश्वास था कि भगवान गॉड जो है ऐसी गलती नहीं कर सकते. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink on the public writing table. और immediately वो पेन एंड पेपर मांगता है और लिखना शुरू कर देता है. He started to write with much wrinkling of his brow. अपनी थोड़ा ब्रोज को गुस्से में करता हुआ, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन बताएगा. रिंकलिंग मीन्स थोड़ा लाइनें बना लेता है अपनी आंखों को, रिंकल्स को ऊपर करके गुस्से में लेटर लिख रहा है, ठीक है. ही मेड रिंकल्स लाइक दिस. ओके, रिंकलिंग मीन्स लाइन्स और फोल्ड्स ऑन एनीथिंग. इट इज अ, ठीक है, इट इज अराइज फ्रॉम द रिंकल, वर्ड रिंकल, फोल्ड्स और लाइन्स. ओके, आईएनजी फॉर्म ऑफ रिंकल. Caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp. When he looked up and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. ओके, वो तुरंत उसको लेटर में लिखने के बाद उसको एनवेलप में डाल के कहाँ देता है? मेल बॉक्स में डाल देता है. और उस जैसे ही वो मेल बॉक्स में डालता है और घर चला जाता है. आफ्टर दैट मेल बॉक्स को खोल के जो पोस्टमास्टर है, पोस्टमैन है यहाँ पर, पोस्टमास्टर जाता है और लेटर को निकालता है मेल बॉक्स में से और उसमें पढ़ता है कि उसने क्या लिखा है. इट सैड गॉड ऑफ द मनी दैट आई हैव आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी. उस बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 70 पैसों ही मेरे पास आए हुए हैं. सेंड मी द रेस्ट वन सिंस आई नीड इट वेरी मच. मुझे बाकी पैसे भी भेजिए, मुझे उसकी जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स. क्रूक्स मीन्स उसने बोला कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजें, मुझे डायरेक्टली क्या भेजें? पैसा भेजें. विदाउट रीचिंग टू द पोस्ट ऑफिस इट मस्ट कम टू मी डायरेक्टली. ओके, क्योंकि उसने बताया है कि एम्प्लॉयज कैसे हैं? बंच ऑफ क्रूक्स. क्रूक्स का मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन्स. तो जो एम्प्लॉयज कैसे हैं पोस्ट ऑफिस के, उनको बताया गया है डिसऑनेस्ट. और क्रूक्स मतलब काफी ज्यादा बेईमान है, उन्होंने मेरा पैसा निकाल लिया है. अब आपको मेरा जो पैसा है पोस्ट ऑफिस मेल बॉक्स के थ्रू पोस्ट ऑफिस नहीं भेजना है, आप डायरेक्टली मुझे भेजिए क्योंकि ऑल द एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स. सो दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड. नाउ देयर आर सम ओरल कंप्रेंशन चेक क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो सरप्राइज था जैसे ही उसने लेटर को खोला और उसमें मनी थी? एनवेलप को खोलने के बाद जैसे ही उसमें मनी देखता, नो, ही वॉज नॉट सरप्राइज बिकॉज ही ऑलरेडी न्यू दैट गॉड एग्जिस्ट एंड गॉड विल हेल्प मी. व्हाट मेड हिम एंग्री? उसको किस बात पे गुस्सा आई? उसको
जैसे ही वो 70 पैसों देखता है, उसकी जो डिमांड रिक्वेस्ट थी उससे कम पैसे आने के बाद, कम मनी आने के बाद वो क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वी हैव some more thinking about the text questions. So this you can write by your own as after we have completed this chapter. Who does Lancho have completed faith in? Which sentence in the story tell you this? तो who does Lancho, किसमें जिस पूरा complete faith था? Obvious, he had a complete faith in God. You can write the answer. He had a complete faith in God. कौन सा सेंटेंस है जो बताता है स्टोरी में he had a complete faith in God? आफ्टर जैसे ही वो लेटर एनवेलप को खोलता है वो सरप्राइज नहीं होता है। एक बहुत बड़ा इंस्टेंस था स्टोरी में कि जैसे ही वो लेटर को खोलता है और पैसे देखता है, 70 पैसों निकालता है, वो सरप्राइज नहीं होता है क्योंकि उसे कंप्लीट फेथ था किस पर, गॉड पर। तो दिस यू कैन राइट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो? व्हाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड? और पोस्ट मास्टर ने क्यों सेंड की मनी और उसने गॉड, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और लेटर पे साइन किए गॉड के? क्योंकि वो कुछ एक्ट करना, चैरिटी करना चाहता, कुछ हेल्प करना चाहता था उसके लिए। ठीक है, और क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, एज ही वॉन्टेड टू डू सम गुड वर्क। डिड लैंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? वाई नॉट? क्या लैंचो ने ट्राई किया कि किसने मनी भेजी है? नो, उसने, इसका आंसर होगा नो, ही डिडंट ट्राई दैट हु हैड सेंड द मनी टू हिम बिकॉज ही हैड और इसका वाई में का आंसर क्या होगा? बिकॉज ही हैड अ कंप्लीट फेथ इन गॉड। हु डज लैंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? तो इसका ये होगा, आयरनिक हम बना सकते हैं, इट वॉज अम्यूजिंग कि he was so simple man and so we can say had a complete faith in God। तो आयरनी में आ जाएगा कि उसको ऐसा लगा कि जो ऑल द एम्प्लॉयज इन द पोस्ट ऑफिस आर प्रूव्ड। कैसे हैं? प्रूव्ड हैं, डिसऑनेस्ट हैं, उन्होंने उसका पैसा निकाल लिया है। गॉड कभी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। उससे उसकी सिंप्लिसिटी, उसका फेथ गॉड में, और कुछ इंटरेक्शन ऑफ द फिनोमिनास में बिलीव करता था कि हाउ द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द नेचर इंटरेक्ट विद ईच अदर, वाइटल फोर्स इंटरेक्ट करते हैं और कुछ ना कुछ अच्छा होता है। वो सब किसके अंडर में काम करते हैं? गॉड के अंदर में। सो ये यू कैन राइट द आयरनी ऑफ द दिस क्वेश्चन एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक बार मैं इसको कंप्लीटली वन शॉट में बता देता हूं। ठीक है, वन शॉट में हम क्या लिख सकते हैं? पूरा समरी ऑफ दिस चैप्टर। ओके, देन वी कैन राइट समरी ऑफ द लेक्चर। Summary of the lecture. Just see. The letter to God. A letter to God is a story of faith, okay, story of faith and act of charity where, in which you can write, in which there is
a main character is a Lancho who is a farmer, who is a farmer, who is a farmer, and had a faith in God, faith in God. नेक्स्ट मेन पार्ट आ जाएगा इसमें, when his crops were destroyed, when his crops were destroyed, he was only thinking to have a help from God, because they all lived in a very solitary place, or solitary valley we can say. Okay. Solitary valley, and the crops were, and his crops were, and he was thinking, we had nothing to eat this year, and we will go hungry. Finally, he wrote a letter to God. Asked for 100 pesos. Asked for 100 pesos. As the letter reached to post office, all the employees did a work of charity by helping a Lancho with 70 pesos. But as per his demand,
he wanted 100 pesos, 100 pesos, and Lencho again wrote a letter to God. Letter to God. उसमें लिखता है, God, send me a money directly. Send me a money directly because all the employees of post office are bunch of crook. Bunch of crook. So this is the final little small summary of the story. Okay, and I hope you have understood all the learning from this lesson. We will meet in the next lecture, okay, of poem, that is Fire and Ice. Till then, stay tuned and have a wonderful life.